Greetings, esteemed dignitaries, Mrs. Renuka Joshi ma'am, Mr. Amitabh Garg sir, my fellow mates, and a respected chief guest for the day. We are delighted as well as honored to have among us Shri Ashok Dhyanchand ji as our chief guest while we are gathered here on the occasion of National Sports Day. So, what is the significance of this day? National Sports Day is celebrated on August 29 every year to honor the hockey legend Major Dhyanchand ji. The Government of India, as a gesture of honor, celebrates Major Dhyanchand's birthday as National Sports Day since 2012. The day is observed to spread awareness on the importance of sports and daily activities in everyone's life. The President of India, on the very same day, honors prominent sporting personalities with elite awards, including Khel Ratna, Arjuna Awards, Dronacharya Awards, and Dhyanchand Award. Now, let us get to know more about our chief guest. Thank you, Shobh. Ashok Kumar Dhyanchand ji, many of us know him as the son of the renowned hockey wizard Major Dhyanchand ji. But apart from this, he's also well known for his winning goal made against Pakistan in 1975 that brought home India's only World Cup win. Sir has also received the Arjuna Award at the age of 24 and the Yash Bharati Samman by the government of Uttar Pradesh. Sir was born on the 1st of June 1950. He started playing hockey when he was merely 6 years old. He played for his junior school team and after having graduated to club level hockey, he represented Uttar Pradesh for 4 years in a row. At such a young age, he was known for his exceptional ball control and mastery of the game. Sir has represented India twice in the Olympic Games, bagging bronze in both and thrice in Asian Games, finishing second in all of them. After the retirement from his active sports career, he was appointed as manager of hockey teams of Indian Airlines and Air India. So recently welcomed the renaming of the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to Major Dhyanchand Khel Ratna Award to honor his father by saying sports awards should be named after sports persons. This is a start and we are very happy. Now, I call upon our principal, Mrs. Renuka Joshi ma'am, to welcome sir. Good evening to one and all present here. It's rightly said that gold medals aren't made of gold. They are made up of sweat, determination, and hard to find alloy, that is guts. I am indeed delighted to welcome you all to this celebration of National Sports Day. आज हमारा सौभाग्य है कि इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खुद अशोक ध्यानचंद जी हमारे यहाँ पधारे हैं। सर, आपका खेल के लिए लगाव और समर्पण प्रेरणादायी है और जो आज आपने खुद खेल मैदान से हमारे बच्चों से वार्तालाप करने के लिए आप आए हैं, ये सचमुच ही हमारे लिए एक प्रेरणा स्थान है। आप लोगों की उत्कंठा और न बढ़ाते हुए हम इस प्रश्न मंजूषा को शुरुआत करते हैं। Thank you, ma'am. We are indeed intrigued after hearing about Ashok Dhyanchand ji. But I believe many of us will be having a ton of questions for you, sir, regarding your enlightening journey. यह सौभाग्य की बात है कि मैं इस वर्चुअल मीटिंग में आपके साथ जुड़ा हूं और डेफिनेटली ये 29 अगस्त जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सबके सामने एक आता है, सरकार ने हमको दिया है, देश को दिया है और हमारे सभी बच्चे इसमें खेलों में और रुचि लें और इसके अंदर पार्टिसिपेशन बढ़े। उसके लिए सबसे बड़ी जो अहमियत इम्पोर्टेंट पॉइंट वो यही है कि खेलों में किस तरह हमारे बच्चे और प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करें। तो ये इसका एक मोटो है राष्ट्रीय खेल दिवस का। और मैं चाहूँगा कि एक पूरे देश में इस टोक्यो ओलंपिक के बाद एक नई लहर पैदा हुई है, एक नई चीज़ पैदा हुई है जिसको हमारे देश के सभी वर्गों ने, सभी क्षेत्रों ने, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हमारे राजनेता हो, हमारी राज्य सरकारें हो, सबने बड़ा सीरियस लिया है और अच्छे तरीके से लिया है। तो इसको हमें उसी स्थान तक पहुंचाना है कि हमारे मेडल्स जो 7 मेडल्स आए हैं इस बार, इनको अगले ओलंपिक में हम कम से कम 50 के नंबर के बीच में, जो मैं समझता हूँ हो सकते हैं। हमारे एथलीट, हमारे बच्चे इसमें बहुत सक्षम है करने में, सिर्फ उनको सहारे की जरूरत है। They require the help of their school teachers, their parents, their associations. So I think all will do in same manner. कि हमारा देश सिर्फ 7 या 10 पे ना सिमट जाए,
जब तक हम टारगेट नहीं बनाएंगे लाइफ में, unless we'll not create or set up target to achieve something, we cannot achieve anything in life. So मेरा कहना ये है कि हमारे बच्चे जिनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं, उन सबको ये मैसेज जाए और वो इस बात को लेकर चले और कमिटमेंट करके चले। कमिटमेंट सिर्फ दिखाने वाला कमिटमेंट नहीं, करने वाला कमिटमेंट। सो वी हैव इन रियल लाइफ, इन रियलिटी के अंदर, बिकॉज कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना मेहनत के मिलती ही नहीं है। लाख कोशिश कर ले कि हम बिना मेहनत के स्पोर्ट्समैन बन जाए, बिना कुछ करे सिर्फ सिलेक्शन हो जाए, वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। प्लेंटी ऑफ सेक्रीफाइसेस यू हैव टू सेट अप करने पड़ेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हम हर जगह सुनते हैं, दैट इज़ द डिसिप्लिन एंड द सेल्फ डिसिप्लिन, जो हर जगह ज़रूरी है। एटिकेट्स ज़रूरी है हमको। तो एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित होना, तो खेलों में आगे आकर पार्टिसिपेट करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और सफल बनाने का मतलब ये है कि हम देश को उन्नति की तरफ ले जा रहे हैं। और देश की उन्नति उन मेडलों में जब हम पोडियम पर खड़े होंगे, हमारे बच्चे खड़े होंगे, तो ये एक अलग मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत वाकई में अब तरक्की कर रहा है। जी सर, it's wonderful to hear you after long time, sir. Yeah, so let's start with the first question from Hardik Ubrani, the head boy of the secondary section. प्रणाम सर। मेरा प्रश्न यह है कि इस महामारी के समय हम ज्यादातर ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दे रहे हैं, ऐसे में हम खेल की शिक्षा में कैसे रुचि बढ़ाएं? जी, ये तो आज का बहुत एक कहते हैं ना ज्वलंत क्वेश्चन है कि हमारे शिक्षा में किताबों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और खेल या अदर एक्टिविटीज़, करिकुलम एक्टिविटीज़ जो हैं वो पीछे हो गई हैं। कुछ बच्चे निकलते हैं, लेकिन वो वही निकलते हैं जो कहीं जिनको शिक्षा में आगे या मैं कहूँ टारगेट नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ अब मेरे ख्याल से कई जगह देखिए ना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी गई हैं। इस तरह से जो यूनिवर्सिटी बनेंगी तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे भी और उसमें भी उनको ग्रेजुएशन मिलेगा खेल के आधार के ऊपर। तो ये चीज़ अब डेवलपमेंट के ऊपर चल रही हैं, जिनको कि आने वाले वक्त में आप और देखेंगे। जैसे ध्यानचंद यूनिवर्सिटी अभी मेरठ में माननीय योगी जी सीएम साहब द्वारा बनाई गई है। एक हमारे स्कूल कई तरह के इस तरह के बनेंगे जो स्पोर्ट्स स्कूल के उसमें आधारित होंगे, खेल को प्रायोरिटी दी जाएगी, उसी खेल के आधार पर आपका ग्रेजुएशन और आगे की चीज़ें तय की जाएंगी। तो जो खेलने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही खुशी का विषय होगा ये कि इस तरह की बातें अब हमारे देश के अंदर शुरू हो गई हैं और बहुत जल्दी इस पर और ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएगा। और इस तरह की निराशा वाली बात कि हमको पढ़ना भी है और खेलना भी है, पढ़ाई ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन खेल के शक के अलावा जो हमारा पढ़ाई के अलावा जो खेल, जिसके अंदर सम्मान, देश का सम्मान, आपके खुद की एक भविष्य की रूपरेखा बहुत अच्छी बनती है, अच्छे तरीके से आप बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी सरकार इस पर बहुत ध्यान देंगी और एक अच्छे तरीके से आपकी ये दुविधा दूर हो जाएगी। Very well said, sir. Next, we have a question from Swara Palde, the head girl of the secondary section. जी। प्रणाम सर। सर, आपकी जिंदगी का मोड कैसे बदला? आपको किस चीज या किसने प्रेरणा दी ये हॉकी खेल खेलने के लिए? धन्यवाद। बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे जन्म लेने के बाद जो हमारा एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग जो सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, वेदर थ्रू पेरेंट्स, वेदर थ्रू योर नेबर और थ्रू योर स्कूल्स। तो उसका असर बच्चे के दिलो दिमाग पर होता ही है। तो मैं जब हुआ तो मेरे सामने हॉकी नज़र आई। ऑफकोर्स स्कूल तो जाना ही जाना था, लेकिन हॉकी नज़र आई हर तरफ और उस हॉकी ने मुझे इसकी तरफ प्रेरित किया। खेलने को मैं हर कोई खेल खेलता था, चाहे कोई भी हो, लेकिन हॉकी क्योंकि परिवार का ऐसा खेल था जिसने एक सम्मान दिया था देश में नहीं विदेशों में भी हॉकी को और ध्यानचंद जी को। तो मैंने भी उसका ही जाने का फिर निर्णय लिया तो कमिटमेंट के साथ लिया कि मुझे ओलंपियन बनना है। पहला निर्णय था मेरा कि ओलंपियन बनना है। तो उसमें फिर मुझे सक्सेस मिला और मैं ओलंपिक खेला। Thank you, sir. Coming up, a question from Aniruddha Rupate, sports captain from the secondary section. नमस्ते सर, मेरा प्रश्न यह है
कि ओलंपिक जैसे विशाल मंच पर खेल खेलते समय आपके अनुसार स्पोर्ट्समैनशिप का क्या मतलब है? देखिए, एक चीज होती है हार, एक चीज होती है जीत, विक्ट्री एंड नो लूजिंग द मैच। इसी तरह हमारे जीवन में, शिक्षा में भी वो होता है कि हम जब अच्छा नहीं कर पाते तो हमको बुरा लगता है, हमको रीअपियर होना पड़ता है। हार में, खेलों की हार में ऐसा होता है कि हम हारते हैं तो अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हम कहाँ कमजोर हैं, अपोनेंट हमसे कहाँ पर किस क्षेत्र में ऊपर है। उन कमियों को हम दूर करके उस विरोधी टीम के अच्छे खेल को अपने अच्छे खेल से परास्त करते हैं और कोशिश करते हैं खेलों के द्वारा जीते हारे। तो जब हारते हैं तो डेफिनेटली बुरा हर एक को लगता है, लगना भी चाहिए। लूजिंग अगेंस्ट समवन डेफिनेटली इट गिव्स यू डिफरेंट मैसेज, और अच्छी चीजें अपने अंदर शामिल करनी है, तब हम जीत पाएंगे। उनकी कमजोरी क्या है, अपने प्लस पॉइंट क्या है, इनको देखना पड़ता है। तो ये चीजें हमारे बच्चे करेंगे तो किसी भी जगह पर सक्सेस हो सकते हैं। Wonderful, wonderful. Rightly Sir. Next said, question sir. quickly. Now Yeah. we have Anvita Pradeep, the head girl of the primary section. नमस्ते सर, मैं आपसे बातचीत करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ। इस वर्ष अंग्रेजी में मेरे पसंदीदा अध्यायों में से एक द विजार्ड ऑफ हॉकी है। जब मैंने अध्याय पढ़ा तो मैं यह पढ़कर चकित रह गई कि कैसे आपके परिवार ने भारत को इतने सारे ओलंपिक और विश्व कप पदक जीतने में मदद की। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको मेजर ध्यानचंद से विरासत में क्या गुण मिले और उन्होंने आपको अपने करियर में कैसे प्रेरित किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटे, खुश रहो, बहुत लंबी उम्र हो आपकी। सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज इंसान को खुद ही करनी पड़ती है, चाहे वो टीचर के रूप में कोई भी आपको टीचिंग दे रहे हों, मैं कोचिंग के रूप में आपको कोच कर रहा हूँ, लेकिन असली बातें आपको, असली चीज़, असली मेहनत तो आपकी खुद की होती है। उसके अनुरूप ही काम करना है और उस नाम को और आगे बढ़ाना है। तो ये आगे बढ़ाने का काम नेक्स्ट जनरेशन ही करती है हमेशा। जो काम हम करके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट जनरेशन उसको आगे बढ़ाकर काम करती है। आतर ने तो खेलने से रोका था मुझे, मत खेलो, क्योंकि उस टाइम खेलने से कुछ मिलता नहीं था। मिलने का मतलब नौकरी नहीं मिलती थी, और आप सक्सेस होगे कि नहीं होगे तो क्वेश्चन मार्क होता था। लेकिन हम लोगों ने उसको क्वेश्चन मार्क को हटा दिया और बिल्कुल कमिटेड किया, जो कुछ होगा देखा जाएगा। Yes, sir. Now we have a question from Anaya Verma, the head boy of primary section. Respected sir, मैंने आपको एक इंटरव्यू में कहते हुए सुना था कि आपके पिताजी ने आपको हॉकी खेलने से मना किया, क्योंकि हॉकी खेलने से घर नहीं चल सकता। तो वहाँ कौन सी चीज ने आपको हॉकी खेलने की प्रेरणा दी? धन्यवाद। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और सही सुना कि मुझे रोका। उनके पास सब कुछ नहीं था, तो अपने बच्चों को चाहते थे कि उनके बच्चे कहीं इस जगह पे ना चले जाएं जहाँ नौकरी ना मिले और आगे परिवार ना चले। बड़ी छोटी जिंदगी हुआ करती थी, आज बड़ी जिंदगियां हो गई हैं, लाइफ स्पैन बड़ा हो गया है। तो उन्होंने इस करके मना किया कि हमारे बच्चे कहीं हॉकी तो इतना अच्छा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, क्वेश्चन मार्क था कि मैं इंडिया खेलता नहीं खेलता, अगर नहीं खेलता तो मुझे कौन नौकरी देता। लेकिन हमने उसको रिस्क लिया लाइफ का और इस खेल के साथ ही जुड़े और कुछ सक्सेस मिली, जिसकी बदौलत हाँ एक अच्छी लाइफ हमको मिली। Now, next question from Aditya Rathi, the sports captain of the primary section. सर, मैं आदित्य राठी आपको नमन करता हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि बदलाव के इस दौर में आपके समय के और आज के समय के हॉकी के खेल में क्या-क्या अंतर आए हैं और आपको कौन से नए बदलाव देखने हैं? पहले के जो पेरेंट्स थे हमारे, उनको अपने बच्चों को कहीं चोट लग जाए, कहीं मार लग जाए तो परवाह नहीं होती थी, ठीक हो जाएंगे। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को जरा सी भी चोट लग जाए तो उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव है कि हार्ड गेम खेलने के लिए वो बच्चे जिनको कि हॉकी खेलना है या फुटबॉल खेलना है या कुछ रेसलिंग करनी है या बॉक्सिंग, तो बड़े कम मात्रा में इस तरह के बच्चे पहुंचते हैं। लेकिन आज
इसको भूलकर अगर हम स्पोर्ट्स में जाएं तो एक करियर के रूप में स्पोर्ट्स अब आगे आ रहा है। और इसके अंदर वो चीज़ें हैं, इतना इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट या हमारे देश की सरकार मेडल जीतने पर अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर एक अच्छी धनराशि, अच्छा पैसे मिलते हैं। बट वही बात है कि आपको अच्छे नंबरों से परीक्षा पास करनी है अपनी क्लास में, और खेल के अंदर आपको अच्छा खेल कर दूसरे विरोधी टीम को हराना है, दूसरे देश को हराना है। Yes, sir. Second last question from Aditya Wagh, who is the head boy of Sinnar branch. नमस्ते सर। सर, आप आपके बचपन की कोई ऐसी घटना हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में प्रेरणा देती हो? जी, मेरी एक घटना तो यही है कि जब हॉकी सामने आई तो हॉकी खेलने को दिल किया, और 1964 में जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे जीवन में टोक्यो ओलंपिक उस 64 का टोक्यो में भी हुआ था। टोक्यो जो रेडियो पर आ रही थी और उसके वर्ड्स मेरे दिमाग में जा रहे थे, और वो वर्ड्स ये थे, ओलंपियन जो नाम लिए खिलाड़ियों के नाम हमारे लिए जा रहे थे ना कमेंटेटर से, जो इंडियन प्लेयर्स थे, जो पाकिस्तान से 1 गोल से हमारी भारत की टीम जीती, तो कमेंट्री जो आ रही थी उसमें इंडियन प्लेयर के लिए ओलंपियन बलबीर सिंह, ओलंपियन महेंद्र लाल, ओलंपियन शंकर लक्ष्मण, ओलंपियन गुरबख्श सिंह, इस तरह के ओलंपियन नाम ने मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी ओलंपियन बनना है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मुझे टोटल कमिटमेंट पे लाके खड़ा कर दिया, सेल्फ कमिटमेंट पे कि मुझे ओलंपियन बनना है। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। और हमारे कोचेस नहीं हुआ करते थे, फैसिलिटीज नहीं थी, कोई इक्विपमेंट भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, बट आई कमिटेड माई सेल्फ टू बिकम एन ओलंपियन एंड आई ट्राइड माई बेस्ट फ्रॉम माई ओन सेंस एंड जो हमारी बुनियादी चीज़ें फैसिलिटीज थी भी नहीं, लेकिन हमने कोशिश करी और उस कोशिश में सफल हुए। मेरा बीकॉम का एग्जामिनेशन मेरे सामने एक जगह पर था, फाइनल 1969 में, और एक तरफ था मोहन बागान क्लब की इनविटेशन आया था टू ज्वाइन मोहन बागान क्लब, और एक तरफ था टू अपीयर इन बीकॉम फाइनल ईयर। तो आप सोच सकते हो आई लेफ्ट माई बीकॉम फाइनल ईयर जो मेरा कैरियर था, और ये अंधी जगह थी, अंधेरी थी, डार्कनेस था, बट आई वेंट इनटू इट एंड आई गॉट द सक्सेस। I got selected in 70 for the Asian Games and later on आगे बढ़ते चले गए, खेलते चले गए, and वो मौका मिला when I scored the winning goal against Pakistan 75. That was the biggest achievement in my life. Yes sir. Last question from Siddhi Pagare. नमस्ते सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक अच्छे लीडर की क्या खूबियां होती है जो उसके टीम को आगे बढ़ने में मदद करती है? सबसे बड़ी क्वालिटी लीडरशिप की है कि यू हैव टू हैव योर टोटल कॉन्फिडेंस इन यू। अपने अंदर, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस जो बनता है वो आपके अचीवमेंट से और सेक्रीफाइस से बनता है। डोंट फॉरगेट सेक्रीफाइस। अनलेस यू विल नॉट सेक्रीफाइस, शो योर सेक्रीफाइस, आप लीडर नहीं बन सकते। सेक्रीफाइस अलग अलग मायने रखता है, बट सेक्रीफाइस इज द मेन वर्ड टू बिकम एन लीडर। और उसके लिए आपको क्वालिटीज गेन करनी पड़ेंगी, होनी चाहिए, और वो इनबिल्ट क्वालिटी को और बढ़ाइए अपनी, और लूज बातों को छोड़ दीजिए। जो अच्छी कंपैक्ट टाइट चीजें लाइफ में उनको ग्रहण करें। लूज बातें मजाक होता है, हम लोग सब हंसी मजाक करते हैं, बट अप टू दैट एक्सटेंट कि मेरी जो मेन लीडरशिप है जिसमें लोग मुझे लीडर माने, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू when you are having confidence in you। अपने आप में कॉन्फिडेंस है, मैं करूंगा या करूंगी, और कॉन्फिडेंस सेक्रीफाइस से आता है, सेक्रीफाइस इन एनी वे। थैंक यू। Wonderful. Thank you, sir. It was certainly an amazing opportunity to get to know you, sir. Your words will stay in our hearts and keep on motivating us. Now, I would like to request our principal, Mr. Amitabh Garg, sir, to propose the vote of thanks. Yeah, good evening, everyone. Indeed, it's a matter of great honor and pride for all of us to host this eternal, champion, right? Who carries the name of legendary Major Dhyan Chand ji, and we are thankful. First of all, I would take this opportunity to thank Shri Ashok Dhyan Chand ji for sparing his time. And we could see that in spite of his age, he's so full of enthusiasm
and he's there on the sports field when he was talking to our children. Amazing. Thank you very much, sir, because that's what, sportsmanship is all about. I'm also thankful to Dr. Dinesh Sabnis for making this a reality. It's, once in a lifetime situation, once in a lifetime experience, talking to a legend, and that too on the occasion when we are commemorating the National Sports Day in the memory of his father. My thanks to the entire team of our activity coordinators who worked tirelessly, put the odd things in right place. A great personal thanks to our heads, especially in the senior secondary, Shubh and Piyusha. Every time you people come, you amaze. You're so fantastic. It was good to see that somebody from our senior branch could join. So Roshni, Aditya, great going. Congratulations. Thank you very much. Thanks to all the parents, who've ensured that these children are up and about for today's interaction. Even though it's late in the evening, it's raining in Nasik, but we are still connected. So it's a wonderful feeling. Thank you, Renuka ma'am, for facilitating and welcoming our chief guest, being there, because as heads, if the heads are there, it makes a lot of difference for children, and they get tremendous amount of motivation. Thank you, Nitin. A man behind the scene, a man for all reasons and all seasons, was always there to help us and support us. Thank you everyone for being there and making this a very, very memorable and, like I said, once in a lifetime experience. Thank you very much. Thank you so much, sir. Before ending this event, I would like to quote Major Dhyan Chand ji himself. It is not my country's duty to push me ahead. It is my duty to push my country ahead. I wish you all a very wonderful evening ahead and thank Ashok Dhyan Chand ji again for taking out his time for us. Dhanyavad.